Good morning, dear students. We read cross product of two vectors and we take some properties of cross product or vector product of two vectors. Today we take next property number 4. Okay, for cross product of two vectors. Okay, in this number 4 property we take if the angle between two vectors are 0 degree or angle between two vectors are 0 degree or 180 degree, then cross product of these two vectors are 0. If two vectors are parallel, if angle between two vectors are 0 degree, then these two vectors are parallel to each other. And if these two vectors have angle 180 degree, then they are anti-parallel. Okay, in parallel condition two vectors are like that. In anti-parallel, one vector is this and another vector is this. In this condition, the angle between a vector and b vector is 0 degree, and in this condition, angle between a vector and b vector is 180 degree. Why it happened? We know that a vector cross b vector is magnitude of a multiplied with magnitude of b multiplied with the sine angle between these two vector and n cap. This n cap only shows the direction. Magnitude of n cap is 1. Okay. Now if theta is 0, we know that sine 0 is 0 degree is 0 and sine 180 degree is also 0. Sin 0 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 180 की वैल्यू 0 होती है. So when two vectors are parallel or anti-parallel, then the value of these multiplication of these two vectors are always 0. Okay. Next, number 5. Number 5 property is cross product of unit vectors. देखिए, we write that unit vector in x direction is I cap. Unit vector in y direction is j cap and unit vector in z direction is k cap. Remember one thing, in dot product, देखिए dot product में क्या था? In dot product we know I dot I cap dot I cap, j cap dot j cap and k cap dot k cap is 1. Everybody know? And I dot j or j dot k or j dot I is 0. Means same unit vectors का dot multiplication करेंगे then we got 1 because a dot b equal to ab cos theta. Here when I dot I, then angle between I and I is 0, so cos 0 is 1, so it becomes 1. But टू डिफरेंट वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा 0 बिकॉज आई कैप एंड जे कैप these are perpendicular to each other. When two vectors are perpendicular to each other, then the dot product becomes 0. Okay, now we take cross product. Now if we take I cap cross I cap, then I cap and I cap have same angle means theta equal to 0. So I cap cross I cap, j cap cross j cap and k cap cross k cap is that is 0. Means same vectors का सेम यूनिट वेक्टर्स i j k का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा. बट जब इन्हीं का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये 1 आता है. समझ में आ गया क्यों होता है ऐसा? बिकॉज यहाँ पर तो कोस थीटा आएगा a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a b कोस थीटा, और यहाँ पर आएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज a b sin थीटा एंड cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0. अब देखिए नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स देन व्हाट हैपेंस. देखिए ध्यान समझिएगा, दिस इज x एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर इन x डायरेक्शन इज i cap. दिस इज y एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन y डायरेक्शन इज j cap एंड दिस इज z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो यहाँ पर आप अपवर्ड वाला ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं सारे एक्सिस. तो अब ये हमने बना दिया दैट इज z एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर इन z डायरेक्शन इज k cap. अब वी हैव लर्न, हम ये पहले पढ़ चुके हैं
that if two vectors a vector and b vector are multiplying with each other, then the magnitude of that vector is a b sin theta and direction is given by n cap, and this n cap is perpendicular to the plane made by two vectors. दो वेक्टर जो प्लेन बनाएंगे ना, उस प्लेन की क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा. Okay, then n cap is perpendicular to a and perpendicular to b, and direction of n cap is given by right hand rule. जैसे a क्रॉस b, a से b की तरफ अपने फिंगर्स को हम रोटेट करेंगे, then thumb shows the direction of a vector cross b vector. Everybody know? वहीं से स्टार्ट होता है. देखिए आप, वही ये कंसेप्ट लर्न होगा तभी आप आगे समझ सकेंगे. Then I cap cross j cap, then I cap and j cap make a plane, and k z axis x y plane, I cap and j cap means x axis and y axis make a plane, that is x y plane, and z axis is perpendicular to that plane, so here we go to k cap. अब पॉजिटिव क्या आएगा या नेगेटिव क्या आएगा, आप ये देखिए. देन आई एंड जे, आई से जे की तरफ फिंगर्स रोटेट कीजिए, अपवर्ड आ रहा है, यानी बाहर की तरफ हम लेंगे पॉजिटिव एक्सिस. आप ये समझ लीजिए, आप ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस. देन आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, तो यहां प्लस आएंगे. ऐसे जब आप j कैप क्रॉस k कैप करेंगे, हम j एंड k कैप, that is two axis, y axis and z axis, that makes yz plane. So the cross product of j cap and k cap is along the direction of x axis. yz plane के परपेंडिकुलर कौन होगा, x axis. तो यहां पर क्या आ जाएगा, I कैप एंड k कैप क्रॉस I कैप. अगेन j क्रॉस k करेंगे, अगेन आप अगेन आउटवर्ड आएगा, और k क्रॉस I करेंगे तो भी आउटवर्ड आएगा. तो वो सभी वो जैसे मान लीजिए दैट इज z एक्सिस. ओके, ये हो गया y, ये हो गया z. अब आपने क्या, j क्रॉस k मींस y क्रॉस z, y क्रॉस z. देखिए ये हो गया y ऊपर की तरफ और ये हो गया z. ओके, y क्रॉस z किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस तरफ. तो प्लस का I कैप k क्रॉस I. अब k क्या हो गया, k तो आपके हो गया ये, और I कौन सा होगा, देखिए आप, I आपके होगा x एक्सिस. दिस पेन इज मेक्स I, that is I and that is Z, perpendicular to the plane of body. Z हो गया. अब आप क्या कर रहे हैं, k क्रॉस I, that is k, that is I, k क्रॉस I, that is k, that is I, x axis and z axis. k क्रॉस I upward, upward means y axis, y axis means j. तो इस तरह से होता है. तो हम इससे ट्रिक बनाएंगे बेटा. ऐसे तो बहुत हम एग्जाम में से फटाफट कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं कि आप इस तरह का डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, जब भी आप टू डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो थर्ड वेक्टर आपको मिलेगा. ओके, सेम यूनिट वेक्टर्स i j कैप का सेम i क्रॉस I, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, तो ऑलवेज कितना होगा, 0. क्यों होगा 0, बिकॉज एंगल बिटवीन i कैप एंड i कैप इज 0. देन a b sin थीटा, थीटा इज 0, देन दैट इज बिकम 0. डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपने क्या रूल बनाएंगे, हम रूल बनाएंगे दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, देन वी गोट थर्ड वेक्टर. I क्रॉस j वी गोट k, j क्रॉस k वी गोट I, k क्रॉस I वी गोट j. बट अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके लिए क्या होगा, देखो, व्हेन वी गो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, then we take it positive, and when we go clockwise then we take it negative. अब आप देखिए clockwise means if we write I cap cross k cap, I cross k, then I cross k टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, थर्ड वेक्टर आएगा. अब आपको चेक करना है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस. ओके, देन अगर आप if we go anti-clockwise, then we take positive here. If we go clockwise, then we take negative. Then I cross j, I cross k, sorry,
आई क्रॉस के आप चले हैं क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज and this is anti-clockwise. Okay, then I cross k is minus j. Now if we take I cross j, j cross I, j cross I cap, j cross I means we got k. अब आप चेक कीजिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। j से I की तरफ आप आ रहे हैं, तो आप j से I की तरफ आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज आ रहे हैं, एंटी-क्लॉकवाइज देखिए आप आ रहे हैं क्लॉकवाइज, देन इट इज नेगेटिव। क्लॉकवाइज आ रहे हैं आप, J to I क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज देखिए यहां से ये क्लॉकवाइज आ रहे हैं, सो इट इज नेगेटिव। एंड वी कैन आंसर इट K क्रॉस J, K क्रॉस J it is also K cross J is I cap and K cross J again we go clockwise, so we take negative। यहां पर सभी में हम I cross J we got K एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, J cross K एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव I के, K cross I एंटी क्लॉकवाइज we got J cap। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज करेंगे तो नेगेटिव लेंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर I कर दीजिए, यहां पर J कर दीजिए, यहां पर K कर दीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब ये यहां पर I cross J K, J cross K I cross J K, K क्रॉस I J, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चलेंगे J क्रॉस I माइनस K, J क्रॉस I माइनस K, I क्रॉस K माइनस J, I क्रॉस K माइनस J, K क्रॉस J माइनस I, K क्रॉस J माइनस I। तो जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे तब तो क्या ले लेंगे नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब आप क्या ले लेंगे पॉजिटिव। और टू डिफरेंट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा। ओके, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन किससे देखना है, इससे देखना है कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं या नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज। और टू सेम वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, 0। Okay dear students, thank you।